جو یہاں پر ہمارے وارڈن موجود ہیں ان کو میرے خیال سے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ سول ڈیفینس ہے کیا، ہمارے اپنے حقوق کیا ہیں، ہمارے اپنے اختیارات کیا ہیں. ہم وردی پہن کر جب شہریوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کن اختیارات کے تحت ان کا دفاع کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے پروگرام انتظام ہونا چاہیے. میں سر سے مخاطب ہوں، سر آپ برشتی کے بھی کچھ لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس اختیارات کتنے ہیں. ہم وردی پہن کر جب سڑکوں پہ چلتے ہیں، جب شہری دفاع کے لیے ہم عوام کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. وردی پہننے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگ وردی غلط پہنیں، ٹھیک ہے. وردی جب تک کال آؤٹ آرڈر نہ ہو نہیں پہنی جاتی، اور جب کال آؤٹ آرڈر ہوتا ہے تو اس میں ریزن لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کس لیے کال آؤٹ کیا گیا ہے، کام کیا کرنا ہے آپ کو، تو آپ وردی پہنتے ہیں. یہ جو آپ وردی پہنتے ہیں، میری آواز جاری میں رہتا ہوں، یہ آپ وردی جو پہنتے ہیں یہ غیر قانونی طور پہ کلیئر ہوگی بات. دیکھیں یہ آج تک ہمیں میرے خیال سے مجھے نہیں پتا تھا. جب وردی بنوائی ہے تو یہ بھی پتا ہوتا ہے. جب کال آؤٹ ہوتی ہے تب ہمیں وردی پہنی ہے، لیکن جب ہمیں سر ڈیوٹی پر بلایا جاتا ہے لیکن ہمیں لیٹر نہیں دیا جاتا. منسٹری سے ہمیں کوئی لیٹر نہیں آتا. پر چاند صاحب ہمیں کال کرتے ہیں، سر آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں، ہمارے حاضر ہو جاتے ہیں. تو ان کی ٹریننگ کے لیے بھی کوئی اہتمام کرنا چاہیے. جب کبھی ڈپٹی کمشنر یا کنٹرولر یا ڈپٹی کنٹرولر آپ کو کال کرتا ہے، چاہے وہ ڈائریکشنز ہو، ڈائریکشنز کہتے ہیں زبانی یا ٹیلی فون کے ذریعے، یا اگر باقاعدہ لیٹر ہے، جب آپ کو کال کی جائے گی تو آپ وردی پہن کے آئیں گے. ادروائز آپ وردی نہیں پہن سکتے. آپ کو اگر سڑک پہ چلتے ہوئے پولیس والے گرفتار کر لیتے ہیں تو قانونی طور پر آپ کو نہیں چھڑوایا جا سکتا. یاد رکھیے، کیونکہ آپ غیر قانونی طور پر وردی پہن لیتے ہیں. ایک کام، اپنی مرضی سے آپ ڈیوٹیز نہیں دے سکتے. اپنی مرضی سے اگر علاقے میں آپ ایسی کام کر رہے ہیں کیونکہ ہر آدمی اپنے علاقے میں کام کرتا ہے تو آپ بلا شبہ کیجیے. دوسری بات یہ کہ یہ پتہ ہونا چاہیے، اگنورینس آف لا از ناٹ ایکسکیوز. قانون کا علم نہ ہونا یہ معذرت نہیں ہوتی کہ آپ کا مجھے قانون نہیں پتہ تھا لہٰذا میں نے قتل کر دیا. مجھے تھوڑی پتہ تھا قتل کرنے کی سزا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب آپ گھر میں بکرا خرید کے لاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بکرے کو آپ پالنے کے لیے لائیں یا قربان کرنے کے لیے لائیں. وردی جب آپ خرید کر پہن رہے ہوتے ہیں سلوا کر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کب پہننا. یہ تھوڑی کہ آپ پہننے کے بعد سڑکوں پہ نکلتے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وردی وداؤٹ کال آرڈر نہیں پہنتے. ٹھیک ہے سر، آج یہ بات جو ہے کلیئر ہو چکی ہے. تمام ہمارے فوج وارڈوں نے سن لی، اور جتنے جو ہمارے دیگر وارڈن ہیں میں چاہوں گا کہ ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے تو بہتر ہے. یہاں پر ہمارے ایک ایسے سیکٹر وارڈن موجود ہیں جنہوں نے سول ڈیفینس کی لا کو پڑھا ہے. پروگرام کے اسٹارٹ سے پہلے میری ان سے بات ہوئی. میں محمد عزیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک منٹ کے لیے، عزیر بھائی پلیز ایک منٹ کے لیے یہاں آئے. یہ محمد عزیر جو ہمارے سیکٹر وارڈن ہیں، انہوں نے سول ڈیفینس کی لا کو اب تک پڑھا ہے. 1952 کا ایک انہوں نے پڑھا ہے سول ڈیفینس کا. تو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے ہمارے لیے ضروری ہیں. 1952 کا جو ایکٹ ہے وہ وارڈنس کے لیے نہیں ہے، والنٹیئر سروس کے لیے نہیں ہے. ایکٹ جو ہے 1952 کا وارڈن کے لیے، اور جو 1951 کا اسپیشل پاور رولز ہیں وہ بھی وارڈن سروس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ وارڈن سروس اس وقت ایئر ریڈ پریکاشنز ہوا کرتے. بعد میں یہ 66 میں جا کے سول ڈیفینس میں کنورٹ ہوئی. تو جس ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکٹ وارڈن سروس کے لیے، والنٹیئرس کے لیے. تو سر ہمارے لیے جو ایک لگتا ہے اگر اس کا کتابچہ اگر ہمیں ملے تو ہم اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں سول ڈیفینس کی جو لا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلے. آپ کا کام سمپل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتظامیہ کی ہیلپ کرتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی. ان کیس آف ایمرجنسی سے مراد یہ ہے کہ سول ڈیفینس جو ہے بیسیکلی وار اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہے. وار اورینٹیڈ آرگنائزیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جنگ کے دوران کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے. جب کبھی کوئی جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت صورتحال جو دیکھنے میں آئی ہمیشہ سے 71 کی بات ہوئی، 65 سے پہلے بھی ہوئی ہوگی. تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سول ڈیفینس میں شامل ہو جاتے ہیں. ایئر اٹیک ہوتا ہے نا، ہوائی حملہ ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے علاقے میں کام کرتا ہے، ہر آدمی اپنے علاقے میں کام کرتا ہے. یہ والی بات مجھے ہوم سیکرٹری صاحب نے آج سے 4 دن پہلے بھی کی کہ
सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो अपने इलाके में काम करते हैं। जब कहीं कोई बिल्डिंग गिर जाती है सिविल डिफेंस के लोग नज़र क्यों नहीं आते? जब कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है सिविल डिफेंस के लोग क्या वर्दी पहनकर सड़कों पे घूमना सिविल डिफेंस वालों का काम है? या अगर कोई जुलूस आ रहा है उसके साथ वर्दी पहनकर तस्वीरें बनवाना काम है? नहीं, आपका काम जो है खिदमत इंसानी है। हर इलाके के अपने नुमाइंदा लोग होते हैं। इलाके के नुमाइंदा लोगों का होने का मतलब ये है कि आप अपने इलाके में रहते हैं, आप में जज्बा है, आपने सीखा हुआ है। बगैर सीखे फिर आप क्या काम कर रहे हैं? अभी भी हमारी बात हुई कि ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, ट्रेनिंग आप अरेंज करें। मैं खुद आऊँगा अगर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं आएगा तो आप अपने इलाके में रहते हुए, अब होता है क्या है, मिसाल के तौर पे एक बम गिरता है, एक बिल्डिंग कोलैप्स कर देती है, बिल्डिंग गिर जाती है। जब बिल्डिंग गिर गई उसमें लोग फंसे हुए हैं, उस बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकालना है, कुछ जख्मी हैं, कुछ मर गए हैं। इदारे आएंगे, आकर काम करेंगे, लेकिन अचानक उनको एक मैसन चाहिए, एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ऐसा ही है, फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। बाद वक्त कई दिन जो है वो इदारे सर्विसेज वहाँ काम कर रही होती हैं उस इलाके में, तो उन लोगों को आराम करने के लिए जगह भी चाहिए। कोई अपना जो है वो बैठक खोल देता है, उनको पानी चाहिए, उनको चाय चाहिए। होता है ना, जब कई दिन तक वहाँ काम हो रहा होता है, उनकी हेल्प करने कौन लोग आएंगे? ट्रेन लोग आएंगे, उसी इलाके के लोगों को आना होता है, क्योंकि उस इलाके के लोगों को पता होता है कि इस घर में कितने लोग हैं, इस घर में कौन रहता है, इस घर का नक्शा कैसा बना हुआ है। बाहर से आने वाले शख्स को नहीं पता होता है कि इस घर में बेसमेंट था, क्या खाना था इनका। तो अपने इलाके में काम करना होता है सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को। लेकिन हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो जब कोई हादसा हो जाता है तो वो नज़र नहीं आते, वो सिर्फ नज़र आते हैं 12 रबीउल अव्वल को, वो नज़र आते हैं 9-10 मुहर्रम को, वर्दी पहन के जुलूस के आगे पीछे चल रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। और जब खिदमत इंसानी का कोई मौका होता है तो हमें नहीं पता चलता कि हमारे वॉलंटियर से कौन। आपको बगैर वर्दी के भी अपने इलाके में काम करना है। आपकी पोजीशन, आपकी शनाख्त, और होता है ना एक आदमी का की शोहरत कि यार ये आदमी है, कहीं कुछ हो जाए ये आदमी वहाँ पहुँच जाता है और ये सीखा हुआ। तो आपको सीखा हुआ होना चाहिए और आपको लोगों की मदद अपने इलाके में करना चाहिए। आपकी अपने इलाके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम कहते हैं ना पोस्ट होती है, सेक्टर वार्डन होता है। जो सेक्टर वार्डन है, पोस्ट वार्डन है, वो अपने इलाके में अपनी एक फोर्स बना के उनको ट्रेन करा के रखे और ये उनको बता के सिखा के रखे कि खुदा ना खासा हमारे इस इलाके के अंदर ये छोटा सा जो इलाका है 5,000-10,000 की आबादी का, इसमें कोई हादसा हो जाता है आजकल 5,000 की आबादी कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं होता। तो फौरी तौर पे हमने आना है और आने के बाद काम करना है। ठीक है जी, ये है सर। जैसा कि अभी आपने कहा कि 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम रबीउल अव्वल हम उस वक्त तो हमें लेटर आता है, लेकिन जब इन केस के पे बिल्डिंग गिरती है, जल्जले आते हैं, लेटर नहीं आता ना, बिल्डिंग गिरने हमें पहले बिल्डिंग वाले लेटर नहीं, तो हम बगैर लेटर के बगैर क्या हम अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं? यार हादसे की लेटर के इंतजार करो कि लेटर आएगा। हादसे को तो पता चलने में 2 दिन लग जाते हैं बातों पर। हादसे का अभी मिसाल के तौर पे आपके इलाके में किसी गाड़ी का हादसा हो गया, एक वैन जा रही है बच्चों की, उसमें आग लग गई किसी वजह से, और आग लगने के बाद उसमें 4 से बच्चे गिर गए। तो शाम को 4 घंटे बाद पता चलेगा, उस वक्त तो बच्चे मर गए होंगे या हॉस्पिटल चले होंगे। फौरी तौर पे हादसे तक इंसान। सर बिल्कुल, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन सवाल करने का मकसद ये है कि जो हमारे वार्डन जो बैठे हैं उनके जहन में भी ये चीज़ क्लियर हो जाए, किसी भी इमरजेंसी में हम काम कर सकते हैं अपने इलाकों में। वर्दी वहाँ अपने इलाके में काम करने के लिए आपसे कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि वर्दी पहन के आओ, कार्ड आपकी जेब में मौजूद है, बट आपसे कौन कहेगा कि वर्दी। जब आप अपने इलाके में तो आपको सब पहचानते हैं। आप अपने इलाके में जो है वो अपना एक सेक्टर के अच्छा, यहाँ मसला ये है कि हर आदमी का फूल लगे, बगैर फूल का कोई होता ही नहीं है। तो वो ऐसे जनरल का क्या काम जिसकी फौज ही ना हो, और बगैर फौज के लड़ा जाते कहीं पर, सब जनरल है, इसीलिए हम लोग वर्दी नहीं पहनते हैं। सिंपल आपसे बात करें तो एक तो ये कि आपके पास आपकी फोर्स होना चाहिए हर इलाके, उस फोर्स के जरिए आप काम करें। अगर फोर्स नहीं है तो फिर आप काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ वर्दी पहन के घूम सकते हैं। ठीक है, तो वर्दी जो है वो जहाँ कॉल आउट होता है वहाँ होती है, अपने इलाके में आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप काम कर रहे होते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपके यहाँ एक दफ़ा अगर ट्रेनिंग करा दी जाती है तो आपका कोई एक आदमी मास्टर ट्रेनर हो जाता है। उसूलन होना ये चाहिए कि सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में भेज के 1-2 लोगों को आप ट्रेनिंग कराएँ, लंबी ट्रेनिंग कराएँ और एक सिस्टम बनाएँ।
बहुत माजरत के साथ हमारे सामने जो रिजल्ट आता है ना, वो सिवाय वर्दी की कुछ भी नहीं आता। मैं गलत कह रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। काम नहीं हुआ, वो काम होना चाहिए। अच्छा, जब आप काम करेंगे ना, आपको खुद भी यहाँ से इत्मीनान, और न सिर्फ यहाँ से इत्मीनान होगा, बल्कि फिर कुछ कहने कुछ समझने की जरूरत, आपको खुद पता होगा कानून क्या है और काम क्या करना है, क्योंकि हर आदमी कानून को जानता है। हर आदमी कानून को जानता है, हर एक को अपनी लिमिट्स का पता है। आपका काम किसी दुकान का जाके चालान करना तो नहीं है ना, आपका काम खिदमत इंसानी है। आपका काम खड़े होकर ट्रैफिक के लोगों को रोक कर से कागजात तलब करना तो नहीं है ना। तो आपको अपनी लिमिट्स का पता है कि आपका काम जो है वो सिर्फ लोगों की खिदमत करना है, लोगों को बचाना है, ये काम है। हाँ, जहाँ हुब्बुल वतनी की बात है, अगर 14 अगस्त है, 23 मार्च है, तो आपके अफसरान को आकर कॉल आउट ऑर्डर निकालना चाहिए कि हम फलानी जगह एक बड़ी सेरेमनी कर रहे हैं, एक कॉल आउट ऑर्डर निकालें ताकि हम लोग वहाँ पर बावर्दी जमा हो। ठीक है ना, तो इस तरह। लेकिन जब आप कहीं पर भी इस तरह की कोई डेमोन्स्ट्रेशन करें कि जहाँ बहुत से लोग हों, तो कोशिश कीजिए। हमें अफसरान भी कहते हैं कि यार आप सिविल डिफेंस के लोगों को भेज दो, सारे के सारे अफसर ही होते हैं। एक ASI खड़ा होता आगे, उसके सामने जो वो DSP के रैंक लगाए सारे होते हैं, पुलिस के एक ASI ऐसा ही होता है। तो कहते हैं कि यार फोर्स कहाँ है यहाँ, तो फोर्स होना चाहिए, फोर्स बनाओ। फोर्स होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये सारे सवालात करने का मकसद ये था कि हमें कुछ इल्म हो, और सर ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें जो तरबियती जो खिताब किया और हमें जो बातें बताई, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पर अमल दरामद करें और हम अपनी फोर्स बनाएं, और इंशाल्लाह हम जो है सिविल डिफेंस और हमारे मुल्क की जो आला अफवाज है उनके साना बरसाना हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं यह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि प्रोग्राम एक छोटी सी बात मैं और करूँ, देखिए आप अपने इलाके में इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, कि जब आपका कोई सेक्टर वार्डन जो है उसकी अपनी एक फोर्स तैयार है और लोग देखते हैं कि यानी साहब आपकी भरपूर तालियों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रहमान और रहीम के लिए जिसके हाथ में हम सब की जान है। करोड़ों दरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, और उतने सलाम सुल्तान करबला और उनके काफ़िले वालों पर। आज 1 मार्च आलमी यौम शहीद दिफा। 1 मार्च आलमी यौम शहीद दिफा। ये मार्च का महीना वही महीना है जब 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान भी मना हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सिविल डिफेंस साउथ के तमाम वार्डन, पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे सरबराह रहनुमा इकबाल चांद साहब और याया तनवी साहब, साहिद मसूद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये तकरीब इफ्तार करने पर वेलकम बैक। पालिका में हाजिर हूँ। सिविल डिफेंस डे के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब है। तो हमारे दरमियान हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर साथी, बहुत ही अच्छे वर्कर और बहुत ही अच्छे मुल्क के मायनात आर्टिस्ट अली मुराद साहब मौजूद हैं। आइए देखें इनसे कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली मुराद साहब एक मुख्तसर पैगाम देना चाहेंगे? मैं काफ़ी अच्छे से सिविल डिफेंस के प्रोग्राम में और इन लोगों के साथ हूँ, और ये लोग भरपूर ताउन करते आ रहे हैं। यौम आशूर पे, मिलादुन नबी पे, और मेरी खिदमत इनके साथ हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ़ पारेख साहब का, चांद साहब का और सलीम छुआरा साहब का कि इन्होंने भरपूर यहाँ अपना रंग जमाया और भरपूर साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।